السلام علیکم۔ راشٹریہ سہارا روزنامے میں شاہد زبیری صاحب کا ایک مضمون اونٹ ابایا پہاڑ کے نیچے کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ جس وقت قارئین کے ہاتھوں میں اخبار ہوگا، نریندر مودی تیسری مرتبہ 5 درجن وزیروں کی فوج کے ساتھ حلف لے چکے ہوں گے اور NDA سرکار تشکیل پا چکی ہوگی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مودی کی گارنٹی کا یہ حشر ہوگا کہ خود مودی سرکار کی ہی گارنٹی ختم ہو جائے گی اور ایک دو نہیں 52 پارٹیوں کی کھچڑی سرکار، یا یوں کہیے کہ بھانمتی کے کنبے کی سرکار وجود میں آئے گی اور سرکار بیساکھیوں پر ٹکی ایک مجبور سرکار ہوگی۔ وزیر اعظم کا تاج جو مودی جی کے سر پر رکھا گیا ہے، وہ تاج نہ گجرات کے وزیر اعلیٰ کا تاج ہے اور نہ 2014 اور 2019 کے وزیر اعظم کا تاج ہے، جس میں سیٹوں کی اکثریت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ تاج کانٹوں کا تاج ہے۔ وقت بھی کس قدر ظالم ہے، کب پلٹا کھا جائے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مودی جی کو کیا پتا تھا کہ 400 پار کا ان کا خواب پارا پارا ہو جائے گا؟ کسے خبر تھی کہ ان کا اور BJP کا 370 سیٹوں کا دعویٰ بھی دھرا رہ جائے گا اور ارادوں کی کمند لبام کو چھوئے بغیر ہی ٹوٹ جائے گی؟ سچ تو یہ ہے کہ مودی اور BJP کے تمام دعووں اور ایگزٹ پول کے تمام غباروں کی ہوا نکل گئی ہے اور 240 پر ہی قسمت کی سوئی اٹک گئی اور ایک دو نہیں پوری 32 سیٹیں ہاتھ سے پھسل گئیں، اور جن پر کامیابی ملی ان میں سے کچھ سیٹیں ایسی بھی ہیں جو بہت کم ووٹوں کی سبقت سے بچی رہ گئیں۔ حقیقت میں حکومت اس طوائف کی طرح ہے جو آنکھیں پھیرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ نہ جانے کتنے دارو سکندر دنیا کے زیر کرنے آئے، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ مودی جی کی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن وہ نتیش کمار اور نائیڈو کی جن بیساکھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچے ہیں وہ لائق بھروسہ نہیں۔ کون جانے کب نتیش اور نائیڈو یہ بیساکھیاں ہٹا لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مودی اور BJP نے اپنے نفرت کے انتخابی رد کو مسلم دشمنی کے گھوڑوں پر سرپٹ دوڑا رکھا تھا، جس کو ملک کے باشعور اور سمجھدار عوام نے آگے بڑھنے سے روک دیا اور نریندر مودی کو سیاسی اور اخلاقی طور پر عبرتناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا، جس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کے عوام کی اکثریت آج بھی بھائی چارہ، سدبھاؤ اور مشترکہ کلچر پر یقین رکھتی ہے اور ساجھا وراثت اور ساجھا شہادت کو دل سے مانتی ہے۔ اسی لیے انڈیا الائنس کے کھاتے میں 235 سیٹیں آئیں، تنہا کانگریس کے حصے میں 100 سیٹیں آئی ہیں جو پہلے سے دگنا ہیں، اور اس کا ووٹوں کا فیصد بھی بڑا ہے۔ UP میں سماجوادی پارٹی نے 37 سیٹوں پر کامیابی پائی اور UP کی کل 43 سیٹیں انڈیا
अलायंस के खाते में आई। ममता बनर्जी ज़ाहिर में इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अपोजिशन में शुमार होती हैं। उनकी पार्टी ने बंगाल में बीजेपी के झूठ की हंडिया फोड़ दी और महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस ने अच्छा मुजाहरा किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपोजिशन मजबूत पोजीशन में है। सवाल ये है, क्या एक मजबूर सरकार मजबूत अपोजिशन के सामने टिक पाएगी? इससे पहले भी बीजेपी की मिली जुली सरकार एक मर्तबा 13 दिन और एक मर्तबा 13 महीने ही चल पाई थी। एनडीए की ये सरकार कितने दिन चलेगी, सबकी नज़रें इस पर लगी हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ऊंट अब आया पहाड़ के नीचे। गुजरात के वज़ीर आला से लेकर मुल्क के वज़ीर आज़म के मनसब तक नरेंद्र मोदी ने जिस तरह सरकारें चलाई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। एनडीए में शामिल पार्टियां तो दूर कैनबेट की मर्जी की भी मोदी जी ने कभी परवाह नहीं की। उनकी फितरत में आमिरियत और तानाशाही है। इसी के ख़मीर से उनकी शख्सियत तैयार हुई है। वो अकेला चलो पर यकीन रखते हैं। अब तक का उनका रिकॉर्ड यही रहा है। ये पहला मौका है कि मोदी जी को 52 पार्टियों वाली सरकार चलानी पड़ेगी और सबको साथ लेकर चलने और खुश रखने का धर्म निभाना पड़ेगा। और सरकार भी मोदी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार कहलाएगी। हर चंद के मोदी जी और बीजेपी की भरपूर कोशिश होगी कि वो फाइनेंस, दाखिला, खारजा और दफा जैसी वजारतों के कलमदान अपने ही कब्ज़े में रखें और इस पर कोई सौदेबाजी न करें, चूँकि वजारत दाखिला के तहत सीबीआई तो फाइनेंस के तहत ईडी आती है। मोदी ने इन दोनों एजेंसियों के बलबूते पर 10 साल तक जिस तरह अपोजिशन लीडरों का नातिका बंद रखा है वो सब पर आया है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, देखना ये है। मोदी जी ने पूरा इलेक्शन जिस बयानिया के तहत लड़ा है वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम मुखालिफ था, जिसमें मुस्लिम रिजर्वेशन भी शामिल था। लेकिन नायडू आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दीगर मुराआत देने के अलावा 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के इशू पर कायम हैं और इस तरह के कुल 25 वादे उन्होंने असम्बली इलेक्शन में आंध्रा के मुसलमानों से किए थे, जो असम्बली इलेक्शन में उनकी कामयाबी का सबब बना। क्या मोदी जी अब इस पोजीशन में हैं कि वो नायडू को ऐसा करने से बाज रख सकेंगे? अलावा अजी मरकज़ी सरकार से आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिए जाने के मुतालबे से भी नायडू पीछे हटने वाले नहीं हैं। वजारत दाखिला और स्पीकर के मनसब पर भी नायडू की नज़र है। कुछ इसी तरह का मुतालबा नीतीश कुमार का है। वो भी बिहार को खुसूसी दर्जा दिए जाने की ज़िद पर कायम है। अगले साल बिहार असम्बली के इंतखाबात होने हैं, इसलिए भी नीतीश कुमार के लिए ये मसला बहुत अहम है कि नीतीश कुमार ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी बिहार में करा चुके हैं और पूरे मुल्क में कराना चाहते हैं। अग्निवीर और एक्सान सिविल कोड पर वो नज़रसानी चाहते हैं। उनकी नज़र रेलवे की वजारत पर भी है, जो अडानी के लिए
खतरा की घंटी है। मोदी जी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे घाघ और शातिर सियासी लीडरों कैसे नीतीश के सबकी नज़रें इस पर हैं। कहा जा रहा है कि अभी 3 माह इंतज़ार करना पड़ेगा, तब ये वाज़ह हो जाएगा मोदी जी कैसे इन चैलेंजेस से निपटते हैं। इसी के साथ मोदी जी की भी कोशिश होगी कि एनडीए में शामिल बशमूल नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी के मेंबरान पार्लियामेंट को लालच देकर अपने पाले में खींच लें। वो मुकम्मल अक्सरियत की आरज़ू पूरी करने से नहीं हिचकिचाएंगे। वो ऐसा करते रहे हैं। उन्होंने कई सूबों की सरकारें इधर से उधर की हैं और अपोजिशन सरकारों पर अपनी मुहर लगा चुके हैं। उनके नज़दीक जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। शायद इस खतरे को चंद्रबाबू नायडू पहचान गए हैं, इसीलिए वो स्पीकर की कुर्सी मांग रहे हैं ताकि मोदी जी की तमन्नाओं पर ब्रेक लगा सकें। इन चैलेंजेस के अलावा गुज़िश्ता 10 सालों की सरकार के मुकाबले मोदी जी की एनडीए सरकार को 235 मेंबरान पार्लियामेंट वाली मजबूत अपोजिशन का भी सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर की हैसियत से कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगा दी है। क्या मोदी जी राहुल के तीखे सवालों का सामना कर पाएंगे और अपने बलबूते पार्लियामेंट में वो सब कुछ पास करा पाएंगे जो वो अब तक कराते रहे हैं? कदम कदम पर आजमाइशें मोदी जी और उनके एनडीए सरकार का काफिया तंग कर देंगी। हालात बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के पहले इजलास में ही राहुल गांधी और अपोजिशन 30 लाख करोड़ के शेयर घोटालों पर सरकार को घेरेंगे और जॉइंट पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के ज़रिए जांच कराए जाने का मुतालबा करेंगे, जिसकी तपिश न सिर्फ मोदी जी के दामन तक पहुंचेगी, अमित शाह और अडानी का दामन भी जिससे जल उठेगा। इस इशू पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। नायडू के बेटे पेगासस के ज़रिए अपने फ़ोन टैपिंग मसले पर सरकार को घेरे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं, अहवाल व आसार बता रहे हैं कि अब मोदी जी और एनडीए सरकार में इतनी सख्त नहीं कि वो आईन और जमहूरियत पर शब खून मार सकें। इंडिया अलायंस ने जिस तरह आईन और जमहूरियत के सवाल पर वाज़ा मौक़िफ़ अपनाया, उसको सीएए, एनआरसी और यकसान सिविल कोड पर भी कोई मजबूत स्टैंड लेना चाहिए और मोदी जी वो एनडीए सरकार को इसके खौफनाक इरादों से बाज रखना चाहिए। ये मसला मुस्लिम अक़लियत के लिए सौहान रूह बना हुआ है। वैसे भी इंडिया अलायंस ने मुसलमानों को नुमाइंदगी बहुत कम दी है, ताहम ये उम्मीद तो की जा सकती है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।